best friends, this is Radhika Gaur with the section number 9 of your chapter How do Organisms Reproduce. तो अभी हम यहाँ पे सेक्शन नंबर 9 डिस्कस करने वाले हैं in which we are going to discuss about sexual reproduction in animals. तो अभी हमने क्या स्टडी किया था? हमने स्टडी किया था about sexual reproduction in plants in the section number 8. Clear? I mean to say in section number 7 we have studied about sexual reproduction in plants, and in section number 8 we have studies about how the sexual reproduction takes place in plants. That is, we have learned about pollination, fertilization and germination in the section number 8. Now it's section number 9 in which we are going to discuss about sexual reproduction in animals. So the thing is how the sexual reproduction in animals takes place, and what is what are the substances, what are the procedures, what are the methods that we need to do while we have to learn about sexual reproduction in animals. In order to understand sexual reproduction, we should know the meaning of some important terms which are involved in sexual reproduction. Clear है? यदि हमें एनिमल्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में स्टडी करना है तो उससे पहले हमें रिक्वायरमेंट होती है कुछ टर्म्स के बारे में स्टडी करने की जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व रहते हैं. तो अभी इस सेशन में हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं उन्हीं वर्ड से जो हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व रहते हैं. तो पहली चीज आती है हमारी मेल एंड फीमेल. क्या होते हैं मेल एंड फीमेल? An animal having sex cells called sperms in its body is called male. मेल क्या होगा? कोई भी एनिमल जिनमें सेक्स सेल्स जो है प्रेजेंट रहेंगे, और जो सेक्स सेल्स प्रेजेंट रहेंगे वो स्पर्म सेक्स सेल्स प्रेजेंट रहेंगे, उन्हें क्या बोलेंगे हम? मेल बोलेंगे. क्लियर? That an animal having sex cells called sperms in its body is called male, and an animal having female sex cells called ova in its body is called female. That is, कोई भी एनिमल जिनमें फीमेल सेक्स सेल्स दैट इज ओवा प्रेजेंट रहेंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे? उन्हें हम फीमेल बोलेंगे. क्लियर? दैट एनिमल हैविंग सेक्स सेल्स कॉल्ड स्पर्म्स इन इट्स बॉडी इज कॉल्ड मेल, एंड एन एनिमल हैविंग फीमेल सेक्स सेल्स इन इट्स बॉडी दैट इज कॉल्ड ओवा इन इट्स बॉडी इज कॉल्ड फीमेल. क्लियर? अब बात आती है जो गैमेट्स हैं वो क्या होते हैं. Sexual reproduction takes place by the combination of a special reproductive cells called sex cells. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है? जब कुछ स्पेशल रिप्रोडक्टिव सेल्स जिन्हें हम सेक्स सेल्स कहते हैं वो एक दूसरे के साथ कंबाइन होती हैं तभी हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. क्लियर? दैट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ स्पेशल रिप्रोडक्टिव सेल्स कॉल्ड सेक्स सेल्स. These are known as gametes. ये जो सेक्स सेल्स होती हैं इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? इन्हीं को हम gametes बोलते हैं. The male gamete is animal. I mean to say the male gamete in animal is called sperm, and female gamete in animal is called ovum. जो male gamete रहता है animals में उसे हम sperm बोलते हैं, जबकि जो female gamete रहता है animals में उसे हम ovum बोलते हैं. Clear? Male gamete को sperm बोलेंगे and female gamete को हम ovum बोलेंगे. अब बात आती है zygote क्या होता है. Cell which is formed by the fusion of a male gamete and a female gamete is called zygote. That is, वो सेल जो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के फ्यूजन से फॉर्म होता है उसी को हम zygote बोलते हैं. Clear? That the cell which is formed by the fusion of a male gamete and a female gamete is called zygote. इसके बाद टर्म आता है हमारा fertilization. The fusion of male gamete with a female gamete to form a zygote during the sexual reproduction is called fertilization. Fertilization क्या होता है? The fusion of male gamete with the female gamete to form a zygote during the sexual reproduction is called fertilization. That is, जो male gamete है उसका female gamete के साथ जो fusion होता है zygote फॉर्म करने के लिए उसी को हम fertilization कहते हैं. Clear? That sexual reproduction के टाइम पे जब मेल गैमेट फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज करके zygote का फॉर्मेशन करता है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन. अब जो फर्टिलाइजेशन होता है वो दो टाइप का होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. The fertilization which occurs inside the female body is called internal fertilization. वो फर्टिलाइजेशन जो फीमेल बॉडी के इनसाइड होता है, क्लियर, जो फीमेल बॉडी के अंदर होता है उसे हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं. एंड इट टेक्स प्लेस इन मैमल्स, बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स. जितने भी हमारी मैमेलिया ग्रुप हुआ, एबीज हुआ, रेप्टिलिया हुआ, उन सभी फैमिलीज में जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन है वही होता है. क्लियर? The fertilization
which occurs inside the female body is called internal fertilization. Then आता है हमारा external fertilization. The fertilization which occurs outside the female body is called external fertilization. वो fertilization जो female body के outside होता है, clear? That the fertilization which occurs outside the female body is called external fertilization. It takes place in the amphibians like frogs and toads and also in fishes. External fertilization कहाँ पे होता है? External fertilization जो होता है वो amphibians में होता है, जैसे हमारे frogs पे, toads पे, fishes हुई, इस सब में external fertilization होता है. Clear? So the thing is, internal fertilization occurs inside the female body, while the external fertilization occurs outside the female body. Clear? अब आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग्स. वो तो हमारे कुछ टर्म्स हो गए जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को लेके हमें पता होने चाहिए थे. अब बात आती है जो ह्यूमन बीइंग्स हैं उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है. ह्यूमन बीइंग्स रिप्रोड्यूस बाय सेक्सुअल मेथड आफ्टर अटेनिंग प्यूबर्टी. ह्यूमन बीइंग्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कब होता है? तब रिप्रोडक्शन होता है जब जो प्यूबर्टी है वो अटेन कर ली जाती है. Puberty क्या होता है? It is a period during adolescence when reproductive organs start developing. ये adolescence के टाइम का वो पीरियड होता है जहाँ पे जो reproductive organs हैं वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं. That is testes in male and ovary in female and become functional. That is जो organs हैं, that is males में जो testes हैं, फीमेल्स में जो ओवेरीज हैं वो डेवलप स्टार्ट होती हैं, डेवलपिंग उनकी स्टार्ट हो जाती है. अलॉन्ग विद दैट वो फंक्शनल हो जाते हैं. जब वो डेवलप हो जाएंगे, फंक्शनल हो जाएंगे, तो ऑब्वियसली वो सेक्सुअल मैच्योरिटी अटेन कर लेंगे. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ह्यूमंस में तब होता है जब सेक्सुअल मैच्योरिटी अटेन कर ली जाती है. Actually, the sex hormones like testosterone and progesterone and estrogen causes the development of secondary sexual characters. जितने भी हमारे secondary sexual characters हैं उनका development sex hormones की हेल्प से होता है. Males में testosterone sex hormones present होते हैं, जबकि जो females हैं उनमें progesterone and estrogen females में जो hormones हैं वो present रहते हैं. Clear? And in both girls and boys, certain changes takes place during this reproductive phase. ये जो रिप्रोडक्टिव फेज आता है, दैट इज जो प्यूबर्टी की फेज आता है, वहां पे जो गर्ल्स एंड बॉयज हैं उनमें काफी सारे चेंजेस देखने को मिल जाते हैं. दीज चेंजेस आर सिग्नल्स ऑफ सेक्सुअल मैच्योरेशन. यही जो जो चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं, यही चेंजेस सेक्सुअल मैच्योरेशन का सिग्नल होते हैं. क्लियर? दैट इज इन बोथ गर्ल्स एंड बॉयज सर्टेन चेंजेस टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द टाइम. Some common changes in both boys and girls are thick hair, grown in armpits and genital area between the thighs. क्या होता है? जो thighs हैं, जो armpits हैं, वहाँ पे thick hairs grow हो जाते हैं. Thinner hairs appears on leg, arms and faces. जो legs हैं, arms हैं, faces हैं, वहाँ पे thinner hairs appear होना start हो जाते हैं. Oily skin and appearance of pimples. Oily skin हो जाती है and pimples भी अपीयर होने लग जाते हैं. ये कुछ ऐसे चेंजेस हैं जो बोथ बॉयज एंड गर्ल्स में हमें देखने को मिल जाते हैं, जो शो करते हैं कि प्यूबर्टी की एज अटेन कर ली गई है. एक्चुअली द एज ऑफ प्यूबर्टी इन मेल्स इज 13 to 14 years and in female it is 10 to 12 years. जो मेल्स हैं उनमें प्यूबर्टी की एज रहती है 13 to 14 years, जबकि जो फीमेल्स हैं उनमें 10 to 12 years की एज पे प्यूबर्टी अटेन कर ली जाती है. Sexually mature male और female can produce gametes. जो sexually mature male and females होते हैं वो gametes का प्रोडक्शन कर सकते हैं. When the sperm fuses with the egg, then the developed organism is known as offspring. जब sperm egg के साथ fuse होता है तो वो developed organism जो बनता है, जो create होता है, जो form होता है, उसी को हम offspring बोलते हैं. अब बात आती है how sexual reproduction in animals takes place. जो एनिमल्स हैं उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता कैसे है? एक्चुअली द मेल पेरेंट प्रोड्यूसेस मेल गैमेट, दैट इज मेल सेक्स सेल्स कॉल्ड स्पर्म्स. जो मेल पेरेंट होगा वो क्या करेगा? मेल गैमेट्स का प्रोडक्शन करेगा, दैट इज मेल सेक्स सेल्स का प्रोडक्शन करेगा, जिन्हें हम स्पर्म्स बोलते हैं. द स्पर्म्स इज अ स्मॉल सेल विद अ लॉन्ग टेल फॉर मूवमेंट. जो स्पर्म्स होते हैं वो स्मॉल सेल होते हैं
जिनमें एक लॉन्ग टेल प्रेजेंट रहती है जिसके थ्रू वो मूवमेंट करते हैं, दैट इज जो स्पर्म्स होते हैं वो मोबाइल होते हैं, क्लियर। एंड द फीमेल पेरेंट प्रोड्यूस फीमेल गैमेट्स कॉल्ड ओवा. The ovum is much bigger cell than the sperms having a lot of cytoplasm. जो फीमेल पेरेंट है वो क्या करेगी, वो फीमेल गैमेट्स का प्रोडक्शन करेगी जिन्हें हम ओवा बोलेंगे, क्लियर। जो मेल पेरेंट था उसने क्या किया, उसने स्पर्म्स का प्रोडक्शन किया, जबकि जो फीमेल पेरेंट है उसने क्या करा, उसने फीमेल गैमेट्स दैट इज ओवा का प्रोडक्शन किया। जो ओवम होगा वो साइज में स्पर्म से काफी बड़ा होता है, क्योंकि स्पर्म एक स्मॉल सेल लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसकी टेल प्रेजेंट रहती है, जबकि जो ओवम होता है उसमें साइटोप्लाज्म भी प्रेजेंट होता है काफी सारा, thereby it is much bigger than the sperm, clear. And the sperm enters into ovum and fuses with it to form a new cell called zygote. जो स्पर्म है वो क्या करेगा, वो ओवम में एंटर करेगा, ओवम में एंटर करके वो फ्यूज होगा ओवा के साथ, ओवा के साथ फ्यूज होने के बाद क्या होगा, एक नई सेल का फॉर्मेशन होगा जिसे हम zygote बोलेंगे। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इसी प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। Now the zygote then divides again and again to form a large number of cells and ultimately zygote grows and develops to become a new baby. अब क्या होगा, जो zygote बना that is जो स्पर्म और ओवा के फ्यूजन के बाद जो न्यू सेल फर्टिलाइज सेल zygote का फॉर्मेशन हुआ वो अगेन डिवाइड होगा, अगेन डिवाइड होने के बाद वो लार्ज नंबर ऑफ सेल्स में डिवाइड हो जाएगा और अल्टीमेटली जो zygote है वो ग्रो होगा, डेवलप होगा और एक न्यू बेबी का फॉर्मेशन कर देगा, क्लियर। दैट zygote then divides again and again to form a large number of cells and ultimately zygote grows and develops to become a new baby. By the way, it's a time for challenging question mark and today's question is, what are the functions performed by the testes in human beings? Testes human beings में क्या function perform करती हैं? And your time to start now. 1, 2, 3, 4, 5. Time's up. So, have you answered this in your mind? Let's check out. Actually, production of male sex cells, that is sperms. जो स्पर्म्स का प्रोडक्शन है वो भी टेस्टिस के थ्रू ही होता है, एंड प्रोडक्शन ऑफ मेल सेक्स हार्मोन दैट इज टेस्टोस्टेरोन, जो टेस्टोस्टेरोन जो मेल सेक्स हार्मोन्स हैं उनका भी प्रोडक्शन टेस्टिस के थ्रू ही होता है, क्लियर। टेस्टिस एक ग्लैंड होती है जो सिर्फ मेल्स में प्रेजेंट रहती है और उसके फंक्शंस क्या होते हैं, प्रोडक्शन ऑफ मेल सेक्स सेल्स दैट इज स्पर्म्स एंड द प्रोडक्शन ऑफ मेल सेक्स हार्मोन्स दैट इज टेस्टोस्टेरोन, क्लियर। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे, आज हमने क्या स्टडी किया, आज हमने स्टडी किया अबाउट हाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन एनिमल्स। अलॉन्ग विद दैट हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड कुछ टर्म्स के बारे में स्टडी किया, ह्यूमंस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है हमने वो भी स्टडी किया, और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उनकी स्टेप्स क्या होती है हमने वो भी स्टडी किया। In next session we are going to discuss more about this chapter. Till then, good luck.